Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the different numericals which are related with the NCERT book of class 12th. And these numericals are related with the rate of reaction and the rate law. So the first question is, for the reaction, when the reactant get converted into product, the concentration of the reactants changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and second. तो आप इसके लिए सबसे पहले क्या करें? You must have the knowledge about the rate of reaction formula. Means R is equal to plus minus dx by dt. Means that is the simple definition of rate of reaction. Means the change in the concentration of the reactants or the product with the change of time, yeah, with the passage of time. So that is the definition of rate of reaction. So now what is the change in the concentration of the reactant? Initially the concentration of the reactant are 0.03 molar, and after 25 minutes, that is a change in time. Whatever may be the initial time, but the change in time is 25 minutes. So means dt here is 25 minutes. What is the change in concentration? Initial concentration of the reactant is 0.03 molar and the final concentration is 0.02 molar. So means take the difference of these two, that called the dx, that is the dx, that is the change in the concentration of the reactant. Put these values in that formula. Means 0.02, that is the final concentration, minus 0.03, that is the initial concentration, divided by the change in time. The change in time is 25 minutes. So the answer comes out to be 0.01 divided by 25. And finally, the answer is 4 multiplied by 10 ki power minus 4 moles per liter per minute. Moles per liter per minute. Because the change in time here is in 25 minutes. So the unit is moles per liter per minute. एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपकी जब आप इसको अब कन्वर्ट करेंगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड के अंदर, तो अब आप क्या करें? अक्सर जो स्टूडेंट एरर करते हैं, कुछ गलती करते हैं, वो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन के दौरान ही करते हैं. तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा? टू कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकंड. वैसे तो आप जानते हैं 1 मिनट्स हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर? 60 सेकंड्स. लेकिन आप एक चीज ध्यान दें, मोल्स पर लीटर पर मिनट, आपके जो मिनट है, जो टाइम है, चेंज इन टाइम है, वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर के अंदर है? वो आपका डिनोमिनेटर के अंदर है. देखो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 25. अगर आप इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते, बोलो किस चीज से मल्टीप्लाई कर देते आप इसको? 60 से. तो आपकी मिनट्स बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आपकी कन्वर्टेड इनटू द सेकंड्स. सिमिलरली अब जो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, अगर आपके इस आए हुए आंसर को अब हम डिवाइड कर दें, बोलो किसी से? 60 से. नाउ द आंसर बिकम्स इन मोल्स पर लीटर पर सेकंड. वो पर सेकंड के अंदर आ जाएगा. तो आपका आंसर बोलो क्या आ गया? 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड. सो दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी की बुक. जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4.1 है ये आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4.2. इन ए रिएक्शन 2 moles of the reactant A react with each other effectively, efficiently, and get converted into the products. The concentration of the A decreases from 0.5 moles per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. इस इंटरवल के दौरान हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है. तो सिंपल उसी टाइप से फार्मूले का आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? R is equal to plus minus dx by dt. Here plus sign tells about the increase in the concentration of the product and the minus sign shows that the decrease in the concentration of the reactant. So now put the values in that formula. Is equal to minus 1 by 2 dA by dt. बोलो हमने ऐसा क्यों लिखा? Because we have the balance reaction, means 2 mole of A get converted into the product. 2 mole of A get converted into the product. तो यहाँ पे आपको पर मोल के हिसाब से देखना होता है. तो 2 मोल्स हैं आपके, तो इसलिए आपने क्या लिखा? बोलो यहाँ पे 1 by 2 और dx by dt. dx की जगह हमने क्या पुट कर दिया? दैट इज द A और डिवाइडेड बाय dt. तो ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई है पर मोल के हिसाब से.
आपको सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना जरूर आना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने न्यूमेरिकल काफी सारे डिस्कस भी किए थे पहले, उसके दौरान भी आपको ये चीजें सिखाई गई थी कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए गिवन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में हम किसी भी रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब सिंपली आप यहाँ पे क्या करें, अब डीए क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट इज द चेंज, 0.5 माइनस 0.4 मीन्स आपके पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 0.5, बाद में कितनी हो गई फाइनल 0.4, तो मीन 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाय व्हाट इज द चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मीन्स आफ्टर 10 मिनट्स, तो चेंज इन टाइम डायरेक्टली पुट द वैल्यू हियर द 10 मिनट्स, so the answer comes out to be 5 multiplied by 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर मिनट। आप यूनिट का जरूर ध्यान रखें एग्जाम में। Next question, that is a question number 4.3. For a reaction having the two reactants A plus B, they react with each other to give the product, and according to the rate law means experimental data. When that particular reaction actually takes place in the laboratory, then what happens? Then it is found that according to the rate law, R is equal to K A raised to the power, देखो जो भी पावर में आपको दिख रहा है वो क्या है, these are the coefficient which are determined experimentally. B की पावर में देखो आपको कोफिशिएंट दिखे वो क्या है, these are the coefficient which are determined experimentally. Now what is the order of reaction? तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनका जब हम अगर सम कर दें, दैट सम इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट which are obtained experimentally या which are determined by rate law is called as the order of reaction. So the order of reaction becomes 1 by 2 plus 2, that is 2.5, that is the order of reaction. हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, we have just sum up the coefficient of these reactants which are determined experimentally. Which are determined experimentally means which are written by the rate law. Now that is the order of reaction. Next question, question number 4.4. The conversion of the molecules X to Y follows the second order kinetic reaction. If the concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of the formation of Y? मीन्स कोई रिएक्शन है जिसके दौरान आपके X जो मोलिक्यूल्स हैं ये Y के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, the conversion of the molecules of X into Y, that is the second order kinetic reaction. ये एक second order kinetic reaction है। मीन्स जो X के जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे आपके, तो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसे लिखेंगे, R is equal to K और X raised to X क्या है यहाँ पे, that is a reactant, और रिएक्टेंट की रेज टू द पावर में जो कोफिशिएंट होंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वो कितने होंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो x की रेज टू द पावर में आपने क्या किया 2, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि द रिएक्शन इज ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। अब आप कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन क्या है, वी इंक्रीज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ x टू 3 टाइम्स। मी जो यहाँ पे ये वैल्यू आपको x दिख रही है, अगर हम इस x की वैल्यू में कितना चेंज कर दें 3 टाइम्स, मींस नाउ द x बिकम 3x। अगर x को हम क्या कर दें 3x कर दें तो क्या होगा, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन को r डैश से हम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए जो कंसंट्रेशन थी शुरू में, जो रिएक्टेंट x है उसकी कितनी कंसंट्रेशन थी a मोल्स पर लीटर, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू k, x की जगह आपने a पुट कर दिया, k a रेज टू द पावर 2। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ द concentration of the x is increased by 3 times, now what is the final concentration of x, the final concentration of x becomes 3a moles per liter. Now put that value in the above rate of reaction formula, so the new rate of reaction becomes r dash is equal to k, और a की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3a, और स्क्वायर आपने इसका लेना ही है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम, दैट इज 2। अब आप स्क्वेयरिंग करेंगे 3a का स्क्वायर तो बोलो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9 को हम बाहर कॉमन निकाल देंगे तो 9 अंदर क्या रह गया, वही के ए स्क्वायर। तो ये जो के ए स्क्वायर है व्हाट इज दैट, ये क्या है, ये तो आपकी वही जो ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो हमने जो ऊपर निकाला था, तो इसकी जगह के ए स्क्वायर की जगह हम आर लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया आर डैश, दैट इज अ न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 9r। मींस रेट ऑफ रिएक्शन कितनी ज्यादा बढ़ गई, कितनी इंक्रीज हो गई, द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ बिकम्स 9 टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले थी और जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाली रिएक्शन की 9 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.1 जो आपकी बैक एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की बुक में, उसके पीछे गिवन है ये आपके कुछ क्वेश्चन, और उन बैक क्वेश्चन में से सिर्फ हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट लॉ। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो डिफरेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड द 4। इन सभी रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। हमें ये डिटरमाइन करना। अब 1 बाय 1 हम 4 पार्ट्स को लेंगे। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। जो पार्ट नंबर 1 है आपका, उसमें आपने क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, द रेट इज इक्वल टू के एन ओ रेज टू द पावर में 2। तो मीन्स व्हाट इट शोज दैट, मीन्स रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कोफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट के, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 बिकॉज हियर अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ द कोफिशिएंट the total coefficient of the reactant are 2, so the order of reaction is 2. Now how can we find out the unit of the rate constant for that particular reaction? वैसे हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि what is the unit of K for the zero order, for the first order, for the second order। जैसे आपने जीरो ऑर्डर का देखा था तो यूनिट क्या थी? बोलो, जीरो ऑर्डर की जो यूनिट आपकी आई थी that is the moles per liter per second। फर्स्ट ऑर्डर की आपने देखी क्या आई थी? वो थी आपकी पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर की क्या थी? लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो मीन्स अब ये जो फार्मूला आपको दे रखा है, जैसे आपको पहले सिखाया गया था, R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एन ओ रेज टू द पावर 2। अब हम इनकी यूनिट पुट कर देंगे हर किसी की। dx मीन्स कंसंट्रेशन है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। dt की यूनिट बोलो क्या होती है? सेकंड, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड। और यहाँ पे NO कंसंट्रेशन है, तो इसकी होगी मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 2। देखो हमने वैल्यू पुट कर दी, dx की जगह मोल्स पर लीटर डिवाइड बाई dt की जगह सेकंड, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के, और आगे NO मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 2। अब इसको दो हिस्सों में हम ब्रेक कर लेंगे, मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर, देखो ये जो 2 हिस्सा है इसको दो पार्ट में, ताकि हम कॉमन चीज को कैंसिल कर पाए। बोलो कैंसिल आपने कैसे किया? डायरेक्ट यहाँ पे देखो इस स्टेप से, मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर, देखो 1 कट गया, 1 आपका बच गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, के को यहीं पे रहने दे, लीटर चला जाएगा ऊपर और मोल्स आ जाएंगे नीचे। तो बोलो क्या यूनिट बन गई? लीटर। नीचे मोल और सेकंड है ना, तो ऊपर तो लीटर था तो लीटर, और नीचे कौन है? बोलो मोल और सेकंड। सो लीटर पर मोल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, बोलो किस चीज की? रेट कांस्टेंट के। फॉर कौन सी रिएक्शन? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये था पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब पार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। So in the part number 2, according to the rate law, the value of rate of reaction is given as K H2O2 in square bracket raised to the power कुछ नहीं तो raised to the power 1 है, और I negative raised to the power कुछ नहीं तो वो भी 1 है। Now what is the sum of the coefficient of the reactant according to the rate law? That is 1 plus 1 is equal to 2. So the order of reaction is 2. तो similarly order of reaction 2 है, तो previous part number 1 में हमने निकाल लिया था कि यूनिट क्या होती है, तो उसी टाइप से R is equal to dx by dt इक्वल टू KH2O2 और ब्रैकेट में फिर I नेगेटिव भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करती है? मोलर कंसंट्रेशन। तो इस टाइप से अब आप क्या करेंगे? यूनिट पुट करें। dx की यूनिट क्या थी? मोल्स पर लीटर। dt की क्या है? पर सेकंड। देखो ये सेकंड, तो dx की जगह आपने क्या लिख दिया? मोल्स पर लीटर। dt की जगह देखो आपने सेकंड इज इक्वल टू k, और H2O2 देखो ये पावर 1 ये कंसंट्रेशन है, तो मोल्स पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स पर लीटर मींस मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। तो उसी टाइप से अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पीछे बता दिया गया था, मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर, देखो 1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लीटर ऊपर मोल्स नीचे, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज लीटर पर मोल पर सेकंड। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। इन द पार्ट नंबर 3, the part number 3, the rate of reaction is given as R is equal to K CH3CHO means acetaldehyde raised to the power 3 by 2. So the coefficient of the reactant here are the 3 by 2. So the order of reaction is 3 by 2. Then how can we calculate the unit of rate constant for that reaction which is in fraction, whose order is in fraction? Similar way, in the same way, R is equal to dx by dt is equal to K CH3CHO मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 3 by 2। अब CH3CHO जो मोलर कंसंट्रेशन, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 by 2 का मतलब क्या होता है? 1 plus 1 by 2, 1.5।
तो यूनिट पुट करें, देखो मोल्स पर लीटर पर सेकंड dx by dt की जगह हमने लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 3/2। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, देखो मोल्स पर लीटर पावर 1 और सेकंड मोल्स पर लीटर 1/2। ऐसा करने से मोल्स पर लीटर से देखो मोल्स पर लीटर कैंसिल हो गया। अब उसी टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो बोलो क्या आ जाएगा, लीटर, लीटर रेज टू द पावर 1/2। और नीचे क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे सेकंड के साथ मोल, मोल रेज टू द पावर 1/2, और पर सेकंड तो है ही। तो नाउ व्हाट इज द यूनिट, लीटर 1/2 पर मोल 1/2 पर सेकंड, सो दैट इज द यूनिट। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे हम। इन द पार्ट नंबर 4 द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, C2H5Cl। तो मींस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ C2H5Cl, ओनली 1, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। For the reaction whose order is 1, what is the unit of rate constant K? Similarly उसी टाइप से आप लिखें R is equal to dx by dt is equal to K C2H5Cl। तो dx by dt की यूनिट तो उसी टाइप से क्या, dx की क्या, मोल्स पर लीटर, dt की सेकंड, is equal to K C2H5 की यूनिट क्या होती है, ये तो आपकी कंसंट्रेशन है, तो मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर से देखो मोल्स पर लीटर कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, पर सेकंड। So that's our next question, that is the question number 4.1. Next लेते हैं question number 4.2. In this question, 2 moles of A react with B to give A to B, और experimentally जब determine किया गया according to the rate law, the rate of reaction is found to be R is equal to K A or B raised to the power 2. Means the order of reaction with respect to A is 1 and the order of reaction with respect to B is 2 according to the rate law. It is given, ये यहाँ पे given है, with K की वैल्यू कितनी given है, 2 multiplied by 10 की power minus 6, आगे यूनिट है रेट कांस्टेंट की। Calculate the initial rate of the reaction when A is equal to 0.1 moles per liter and B is equal to 0.2 moles per liter। पहला पार्ट तो ये है, और सेकंड पार्ट इसमें क्या निकालना है, what will be the rate of reaction if the molar concentration of A reduces to 0.06 moles per liter। पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R is equal to K जो गिवन है, A raised to the power 1 and B raised to the power 2, that is given। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें, K की वैल्यू भी गिवन है, देखो K की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 multiplied by 10 की पावर minus 6, ये आप पुट कर देंगे K की जगह पे, को K की जगह पुट कर देंगे। सिमिलरली A और B की वैल्यू भी गिवन है, A की 0.1 और B की 0.2, इन वैल्यूज को आप पुट कर देंगे इस फार्मूला के अंदर। तो जैसे ही आपने पुट किया इस फार्मूला के अंदर, देखो आपने K की वैल्यू क्या पुट की, 2 into 10 की पावर minus 6, A की 0.1 और B की वैल्यू 0.2, और रेज टू द पावर उनके कोएफिशिएंट जो गिवन थे वो हमने सच रखे, मेंटेन रखे। इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है, देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4 तो देखो रहेगा ही। उसके बाद डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10, तो 10 और 10 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, -2, और ये -6 पहले से है, तो बोलो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -8 और मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जा 4, तो 4 multiplied by 10 की पावर -8। आप ऐसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ठीक निकला है, गलत नहीं, एक एरर हमने कर दी। देखो यहाँ पे, देखो क्या एरर की थी यहाँ पे आपने ये नहीं देखा कि रेज टू द पावर देखो 2 था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था बी का दैट इज 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेज टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय देखो 0.2 टाइम आएगा आपका। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 10, डेसिमल हटाया तो देखो 10, क्लियर हो गया। तो ऊपर क्या था, देखो 10 की पावर -6 था, तो देखो ये 3 10 हो गए, 1 2 एंड 3, तो 10 की पावर -9, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपके 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम, 2 2 जा 4 2 जा 8, नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आप एग्जाम में इस टाइप की एरर ना करें, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, तो इस टाइप की एरर्स हो जाती हैं, इसलिए आपको पढ़ाने के साथ साथ ये बताना भी जरूरी होता है कि आप गलती क्या कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनको याद रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ के तो चले ही जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूसेस टू 0.06 मोल्स पर लीटर। पहले कंसंट्रेशन क्या थी, ए की कंसंट्रेशन थी 0.1, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूसेस फ्रॉम 0.1 to 0.06 मींस व्हाट्स द चेंज, इसमें चेंज कितना आया,
कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्ट कर गई वो कितनी रिएक्ट कर गई, दोनों का डिफरेंस ले लें, 0.1 माइनस 0.06 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू 0.04 मोल्स पर लीटर। इतनी कंसंट्रेशन ए की रिएक्ट कर गई किसके साथ, बी के साथ। आपकी जो बैलेंस रिएक्शन है वो क्या कहती है, आप उसकी तरफ आप ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी। ये अब ये चीज ध्यान दें आप, तो मेरे सामने क्या लिखा, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द बी टू गिव द 1 मोल ऑफ ए टू बी। तो यही चीज हम लिखेंगे, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द बी, देन द 1 मोल ऑफ ए विल रिएक्ट विद 1/2 मोल ऑफ द बी। और कंसंट्रेशन ए जो रिएक्ट किया वो कितना है, वो है आपका 0.04 मोल्स पर लीटर। तो 0.04 मोल्स पर लीटर ऑफ ए विल रिएक्ट विद 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, तो बोलो कितना आ गया, 0.02 मोल्स ऑफ बी के साथ ये रिएक्ट करेगी। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, अब हमें निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, कब, जब ए कितना हो गया 0.06 और आपका जो बी है, अब हम बी की कंसंट्रेशन और निकाल लें। देखो ये तो हमने वो देखा है कि जो 0.04 मोल रिएक्ट करेंगे बी के साथ, बी था कितना आपका स्टार्ट में, देखिए बी की कंसंट्रेशन थी 0.2 और जो रिएक्ट कर गया वो कितना है 0.02। सो व्हाट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द बी, तो 0.2 में से आप माइनस कर देंगे, बोलो किस में से, 0.2 में से क्या माइनस करेंगे, जो रिएक्ट कर गया अभी 0.02, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.18 मोल्स पर लीटर, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो मीन्स जो कंटेनर है उसके अंदर ए कितना है, ए रिड्यूसेस टू, बोलो क्या था 0.06, 0.06 देखो क्वेश्चन में गिवन था। और जो बी है वो बोलो कितना है कंटेनर के अंदर 0.18। तो आपके पास जो सिंपल फार्मूला है रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो गिवन था उसको देखो हमने लिखा, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 2। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, वो कौन सी, ए की तो डायरेक्ट गिवन थी 0.06, तो जब ए की कंसंट्रेशन 0.06 थी तो उस वक्त बी की कितनी थी कंटेनर में, वो हमने देखो ऊपर निकाल ली है, दैट इज द 0.18। वैल्यू पुट कर दे सिंपली, देखो के की वैल्यू तो सेम रहेगी, के इज ए रेट कांस्टेंट, ए की जगह हमने क्या पुट किया 0.06, बी की जगह क्या पुट किया 0.18, रेज टू द पावर 2 है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। इनकी कैलकुलेशन की तो आंसर कम्स आउट टू बी 3.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने देखो ये फार्मूला तो पढ़ा ही, देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल टू, बोलो क्या फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला dx by dt, dx by dt, दैट इज द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मींस dx क्या होता है, दैट इज द मोल्स पर लीटर, और टाइम किस में होता है, बोलो सेकंड में। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, आर की जो यूनिट है वो हमेशा ही मोल्स पर लीटर पर सेकंड ही रहती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दैट इज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद द चेंज ऑफ द टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4.3। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.3। इसमें क्या है आपका कि जो डिकम्पोजिशन है अमोनिया की प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जब आपने पढ़ा है कि जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो उसके दौरान जो आपके गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन। और जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम रेट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता लगाएं, कितनी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुई और कितनी हाइड्रोजन हुई। और ये गिवन है कि जो रिएक्शन है वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये हम प्रूव भी कर चुके थे आपको डेफिनेशन के दौरान कि व्हाई द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट बिकम्स द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने बताया था ना कि जो कैटलिस्ट होते हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ रिएक्टिव साइट पोर्स होते हैं, उन पोर्स के ऊपर आप कंटेनर में चाहे कितना भी रिएक्टेंट डाल दें, लेकिन पोर्स के ऊपर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी वो मान लीजिए 6 पोर्स हैं, 6 रिएक्टेंट उसमें जाके बैठ गए तो हर बार 6 ही रहेंगे, 6 से वो कम नहीं हो सकते, 6 से वो ज्यादा हो ही नहीं सकते। whatever may be the concentration of the reactant in the रिमेनिंग कंटेनर, जो रिमेनिंग कंटेनर उसमें चाहे कितने भी रिएक्टेंट आप डाल दें, लेकिन कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर तो उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके जाके सिट कर सकते हैं।
So that is means the concentration of the reactant remains same throughout the course of the reaction on the surface of the catalyst. Means there occur no change in the concentration of the reactant with the change of the time, with the passage of the time with on the surface of the catalyst. So the reaction is zero order reaction. अब देखो हमने क्या लिखा कि जैसे हमने गिवन था ये रिएक्शन है 2 moles of ammonia on dissociation gives the 1 mole of N2 and the 3 moles of H2. So according to the rate of reaction formula R is equal to plus minus dx by dt is equal to, अब इस रिएक्शन को जब आप देखें पर मोल के हिसाब से हमने आपको लिखना सिखा रखा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप गिवन रिएक्शन को। तो R इज इक्वल टू बोलो कितना है, ये 2 मोल्स थे, बैलेंस करना जरूरी है, आप एग्जाम में ध्यान रखें रिएक्शन को बैलेंस जरूर करें। पर मोल के हिसाब से आपने क्या लिखा 1/2, देखो 1/2 dNH3/dt माइनस साइन क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन अमोनिया की क्या होगी डिक्रीज। अब क्या करें हम यहाँ पे आपको ये और फर्दर कैसे लिख सकते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते तो R इज इक्वल टू K NH3 or raised to the power of the coefficient which are determined experimentally and these coefficient here are the zero क्योंकि because the given reaction is a zero order reaction। ऐसे ही जब इसको नाइट्रोजन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे dN2/dt और हाइड्रोजन की फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू तो क्या होगा 1/3 dH2/dt। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में हमने पूरी रिएक्शन को लिख दिया है। तो क्योंकि रेट जब रिएक्शन चलती है तो उसके दौरान जब आपके अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा पर मोल के हिसाब से तो आपके N2 और H2 तो जरूर ही प्रोड्यूस होंगे, वो इसी रेशो में होंगे, तो R इन सभी के इक्वल होता है। अब उसके बाद हम क्या करें, जैसे कि हम जानते हैं गिवन है, ये क्या गिवन है कि द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्मूला था यहाँ पे, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा इज इक्वल टू के रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। तो इट मींस वैल्यू क्या आ जाएगी रेट कांस्टेंट की के इज द आंसर, और के की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी बिकॉज द रिएक्शन इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो रेज टू द पावर 0 है, तो आंसर क्या रहेगा वो 1। तो k मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू k, तो r इज इक्वल टू k, सो दैट्स आवर आंसर। तो R इज इक्वल टू बोलो फर्दर अगर हम देखें किसकी फॉर्म में, नाइट्रोजन के साथ अगर हम देखें तो वही रिलेशन आपका आ जाएगा। तो बोलो कितनी वैल्यू आ गई, बोलो रेट ऑफ प्रोडक्शन हमें देखना है कि नाइट्रोजन कितनी प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो R इज इक्वल टू किसके इक्वल था, बोलो आपके dN2/dt। R की वैल्यू हमने पुट कर दी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू dN2/dt। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो so that is the rate of production of the nitrogen with the change of the time। नेक्स्ट हम देखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो अब H2 के साथ लिखेंगे, तो जो R का फार्मूला था देखो इधर ऊपर मेन रिएक्शन में R इज इक्वल टू बोलो क्या है 1/3 dH2/dt। तो R इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। R की वैल्यू पहले ही हमने ऊपर निकाली थी, कोई ये R की वैल्यू है आपकी, यहाँ पे पुट कर दें R की जगह पे। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को आप ऊपर ले जाएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 7.4। तो 7.5 सॉरी 25 3 जा 75 होता है। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द H2। तो दो ही चीजें हमें यहाँ पे निकालनी थी कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन, तो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, R की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन। वो हमने कहां से निकाली, वो हमारे पास जो रेट लॉ का फॉर्मूला था उससे निकाला था कि R इज इक्वल टू K रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0, वहां से हमने निकाल ली थी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। तो एंड सो ऑन इस टाइप से ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4। The decomposition of the dimethyl ether leads to the formation of these three gases, that is the methane, hydrogen and the carbon monoxide। The rate of reaction is given by R is equal to K CH3OCH3 raised to the power 3/2, that is the order of reaction। अब क्वेश्चन देखो आपका क्या है, the rate of the reaction is followed by increase in the pressure in the closed vessel, so the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether। Means if the pressure is measured in bar and the time in minutes, then what are the unit of rate of reaction and the rate constant।
तो देखो जैसे कि हमें पता है कि जो प्रेशर अगर हम मेजर करें किस चीज में बार में और टाइम इन मिनट्स में, तो उस वक्त जो यूनिट होगी किस चीज की, रिएक्शन की, किस चीज, कौन सी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज, जैसे आप लिखते थे ना पहले मोल्स पर लीटर पर मिनट, तो मोल्स पर लीटर इज द कंसंट्रेशन, और क्योंकि यहाँ पे गैसेस हैं तो गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो प्रेशर की फॉर्म में, प्रेशर की यूनिट यहाँ पे बार की फॉर्म में गिवन है। सो द बार पर मिनट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, dx by dt इज इक्वल टू KCH3O CH3 मींस methoxymethanes रेज़ टू द पावर 3/2। तो आपने dx by dt की जगह यूनिट तो क्या पुट कर दी, बार पर मिनट इज इक्वल टू KSH रहा, और जो मिथॉक्सीमीथेन है उसकी यूनिट बार रेज़ टू द पावर 3/2 है। इसको आप ब्रेक डाउन कर देंगे टू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। देखो 3/2 होता है 1 + 1/2, तो बार रेज़ टू द पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाय बार रेज़ टू द पावर 1/2। तो उससे क्या हुआ, देखो 1 बार से देखो 1 बार कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बच गई अब यूनिट, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी यहाँ पे, बार देखो आपका नीचे आ जाएगा, देखो जो बच गया कहाँ पे आएगा, बोलो नीचे। तो क्या आ जाएगा, बार -1/2 और मिनट 1/2। सो दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.6। A reaction is a second order with respect to the reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant get doubled or the reduced to half? तो टू पार्ट में हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो स्टार्ट में हम अपनी कोई भी रिएक्शन लिख देते हैं कि लेट्स से रिएक्शन मींस x कन्वर्ट इनटू y एंड इट फॉलोज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट ऑफ जो रेट इक्वेशन है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू k ब्रैकेट में x molar concentration of reactant raised to the power 2 because the given reaction is a second order reaction। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन A मान ले रिएक्टेंट की, A मोल्स पर लीटर, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K स्मॉल a रेज टू द पावर 2। अब जो गिवन है कंडीशन वो अप्लाई करेंगे। बोलो पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x गेट डबल्ड मींस व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x मींस 2a मोल्स पर लीटर। अब 2a मोल्स पर लीटर ये पुट कर देंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले में, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, r डैश इज इक्वल टू k, a की जगह 2a पुट किया, 2a रेज टू द पावर 2। तो अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, तो 4 कॉमन कर दें आप बाहर, तो 4k a की पावर 2, और जो इतनी वैल्यू है ये क्या है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन r। मींस यहाँ पे आप r पुट कर दे तो r डैश इज इक्वल टू 4r, मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4 टाइम्स। Hence we can say that the rate of reaction increases 4 times. Rate of reaction increases by 4 times. अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, बिल्कुल सेम। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x गेट रिड्यूस्ड टू हाफ, तो मींस जो पहले कंसंट्रेशन x की क्या थी, a मोल्स पर लीटर, नाउ इट बिकम्स a/2 मोल्स पर लीटर। नाउ पुट दैट वैल्यू इन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको देखो जो इनिशियल ये हमारा जो फार्मूला इसके अंदर पुट कर दें, a की जगह क्या आ जाएगा, a/2, और न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, r डैश। तो r डैश इज इक्वल टू k, a की जगह a/2 पुट किया, तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो a स्क्वेयर बाय 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर आ गया, k a2, तो ये k a2 क्या है, दैट इज द r की वैल्यू है ये ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो r डैश इज इक्वल टू 1/4 r, मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो चुकी है बाय 1/4 टाइम्स। सो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.9। A reaction is first order with respect to A and the second with respect to B। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R is equal to K A raised to the power 1 and B raised to the power 2, ऐसे आप आगे लिख देंगे। तो write the differential rate equation, point number 1, and how is the rate affected on increasing the concentration of the B by 3 times। और third part क्या है, how the rate of the reaction affected when the concentration of both A and B get doubled। तो 1 by 1 हम लिखते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखेंगे, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर 1 है, क्योंकि गिवन है ये कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसलिए a रेज टू द पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो 1, और b रेज टू द पावर क्या लिखेंगे 2, दैट इज गिवन। तो ये हमने लिख दिया रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। जो हमने ऊपर अभी ये फॉर्मूला लिखा, इसमें हमने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन जो ये है देखो यहाँ पे बी, ये 3 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स, तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू के ए, और बी की जगह 3b रेज टू द पावर 2 ही रहेगा, तो 3b का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, तो 9 को बाहर कॉमन ले आए,
तो क्या आ जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 9 और बचा हुआ फैक्टर आपका बिल्कुल देखो सेम है और ये r था तो 9r, r dash is equal to 9r means what is the rate of reaction? The rate of reaction becomes 9 times increase हो जाएगी। अब पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। If the concentration of both A and B get doubled, तो जो इनिशियल हमारी ये देखो रिएक्शन थी इसमें हम क्या पुट कर देंगे बोलो यहाँ पे, A की जगह 2A और B की जगह 2B। तो देखो r dash is equal to K 2A और 2B raised to the power 2। तो देखो 2B की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो 4 2 2 जा 4 और यहाँ पे देखो ये 2B है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 8। उसको कॉमन आप बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा r डैश इज इक्वल टू 8 कॉमन और अंदर क्या है k a b की पावर 2 और व्हाट इज दैट, दैट इज r। तो व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, r डैश इज इक्वल टू 8r means the rate of reaction increases by 8 times. So that is all about these different numericals related with the rate of the reaction and the rate law. तो इस टाइप के आप और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने पहले भी करवाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, काफी सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, कुछ अब करवा दिए हैं। आज वाले क्वेश्चन थे हमारे सारे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, क्योंकि आमतौर पे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से भी आ जाते हैं। सो थैंक यू।